Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you the basic principle used in optical fiber communication. In that, first point is related to quantum theory. It indicates that optical radiation has particle as well as wave properties, and the particle property comes from the observation that the light energy is emitted or absorbed in discrete units, which are called as photons, and this photon energy is depends only on frequency, and the relationship between energy and frequency of this photon is given by E is equal to hf, where h is equal to Planck's constant, E is equal to energy of photon, and f is equal to frequency of photon. Second important point in that is refractive index. This is also called as index of refraction, and it is defined as the ratio of speed of light in air to the speed of light in another medium like glass, water, etc. And the refractive index is denoted by here value n, and the speed of light in air, which is having typical value 3 into 10 raised to power 8 meter per second. It is a constant value. And for a refractive index, if we consider the different material, then again the refractive index for that types of material is also different. Like if we consider the vacuum material, then the value of refractive index is 1. For air, it is also 1. For water, it is considered as a 1.33. For ethyl alcohol, 1.36. For diamond, it is from 2 to 2.42, and it will maximum for silicon, that is it is considered as a 3.4. एंड अगर इसे हम ग्लास फाइबर कंसिडर करते हैं तो उसके लिए 1.5 to 1.9 तक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू रहेगा. So the third important point is reflection. For that, we are assuming A dash is the normal to the flat mirror surface. This is our boundary line, and which is the flat mirror surface. यहाँ पे एक आपका फर्स्ट मीडियम है और यहाँ पे दूसरा मीडियम है यहाँ पे प्रेजेंट, और ये दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन प्रेजेंट है यहाँ पे. तो और यहाँ पे एक आपका लाइट सोर्स रहेगा जो कंटिन्यूसली लाइट को ट्रांसमिट करेगा. तो जो भी इंसिडेंट रे है यहाँ पे एक एंगल बनाएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल लाइन, जहाँ पे हमने कंसिडर किया है phi 1. एंड जब ये इंसिडेंट रे पास होगा और ये बाउंड्री तक जाएगा और उसके बाद ये बाउंड्री से लेके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक. मतलब ये जो है इंसिडेंट रे ये दूसरे मीडियम में यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, ये डायरेक्टली यहाँ बाउंड्री तक जाके रिफ्लेक्ट बैक करेगा फॉर द सेम मीडियम. देन इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, and that angle of incident light determines whether the ray will be reflected or refracted. यहाँ पे एक जो एंगल है ये phi 1 हमने कंसिडर किया था, एंड अगेन द रिफ्लेक्टेड रे that is this phi 2 make angle with respect to this normal line जो हमने यहाँ पे phi 2 consider किया था. Remember one important point regarding reflection is that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is phi 1 is equal to phi 2. Next concept है हमारा refraction. It is the bending of a light ray that occurs when the light ray passes from one medium to another. तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होगा. तो उसके लिए हमने कंसिडर किया है यहाँ पे दो मीडियम. एक पहला है आपका एयर मीडियम और दूसरा है ग्लास. जैसे आपको पता है एयर जो मीडियम होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको रेयर मीडियम बोल सकते हैं. और दूसरा है ग्लास जिसे हम डेंसर मीडियम बोलेंगे. तो ये इंसिडेंट रे फिर से यहाँ पे लाइट को स्ट्राइक करेगा, उसके बाद ये नॉर्मल है आपका. उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद जो सम अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो पास होगा टू दैट सेकंड मीडियम, जिसको हम यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे. इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है. एक तो जब भी आपका जो लाइट है वो पास होगा फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो जो आपका रिफ्रैक्टेड रे रहेगा वो कभी भी टूवर्ड्स नॉर्मल रहेगा आपका. ये नॉर्मल जैसे आप देख सकते हो एक्सिस है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल रहेगा. और जब आपका इंसिडेंट रे है दैट इज़ जो भी लाइट जो है हमारे पास वो जब पास करेंगे हम फ्रॉम नॉर्मल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में, तो जो आपका रिफ्रैक्टेड रहेगा वो अवे फ्रॉम
नॉर्मल रहेगा। ये जो आपका नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये रेयर जो एंगल है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, ये कभी भी ये नॉर्मल से दूर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये, लेकिन यहाँ पे ये टूवर्ड्स नॉर्मल पे जा रहा है, यहाँ पे वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा। नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ अ मटेरियल एट द इंटरफेस इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ। जैसे हमने देखा था रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे था और उसके बाद रिफ्लेक्शन में सम पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक from that boundary surface area, and in refraction the light will pass from one medium to the second medium. Here phi 1 is the angle between incident ray and normal line, and phi 2 is the angle between normal line and refracted ray. तो जिसकी वजह से आपके पास phi 1 phi 2 है प्रेजेंट, एंड उसके बाद n1 n2 भी प्रेजेंट है, वेयर n1 इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट मीडियम, एंड n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका सेकेंड मीडियम के लिए। सो इफ़ वी फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन n1 phi 1 and n2 phi 2, then it is given by n1 sin phi 1 is equal to n2 sin phi 2, जिसे हम कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज n1 cos phi 1 इज इक्वल टू n2 cos phi 2। दिस इक्वेशन कैन बी राइट लाइक n1 by n2 which is equal to sin phi 2 divided by sin phi 1. The last and very important concept, that is critical angle. It is defined as the angle of incidence that causes the refracted ray to travel along the interface between the two different media is called as critical angle. जैसे हमने अभी रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि देर आर टू कंडीशन। इन फर्स्ट कंडीशन, whenever the light is transferred from a rarer medium to denser medium, then refracted ray will bend towards the normal axis, and in second condition, the light is transferred from denser to rarer medium, then refracted ray will bend away from that normal axis. तो इसमें हमने सेकंड जो मीडियम है वो यूज़ किया है। जो हमारा लाइट यहाँ पे पास हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम ग्लास टू एयर मीडियम, दैट इज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जिसकी वजह से आपको जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस में या रिफ्रैक्टेड रे में चेंज होंगे वो हम अभी देखेंगे। इन फर्स्ट केस द इंसिडेंट रे यहाँ पे कुछ तो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू phi 1। हम देख सकते हैं यहाँ पे phi 1 है, और दूसरी केस में यहाँ पे phi 2 है। तो पहले केस में जो इंसिडेंट एंगल ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे आगे जाएगा फ्रॉम नॉर्मल एक्सिस से। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है हम जब बढ़ाएंगे तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ताकि वो जो phi 2 था वो एंगल फिर से बढ़ जाएगा और ये ट्राई करेगा कि ये जो बाउंड्री लाइन है उसको टच करने का वो ट्राई करेगा। तो उसके बाद फिर से सेकंड कंडीशन में जो है हमारे पास फिगर भी यहाँ पे आपका फिर से जो हमारे पास phi 1 एंगल है उसको हमने बढ़ाया है, और जो phi 2 है वो भी बढ़ गया, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फिर से अवे फ्रॉम जो नॉर्मल था हमारा वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया है। यानी जैसे जैसे आप phi 1 जो एंगल है वो बढ़ाओगे वैसे आपका phi 2 एंगल भी बढ़ेगा, और ये कभी भी अवे फ्रॉम नॉर्मल एक्सिस बढ़ेगा। ये कभी भी इधर नहीं आएगा, ये जो हमारा एक्सिस है रिफ्रैक्टेड रे ये यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हम सेकंड मीडियम यूज़ कर रहे हैं जिसमें ग्लास टू एयर है मीडियम, दैट इज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट आपका पास हो रहा है। तो ये कभी भी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं होगा, ये कभी भी आपका यहाँ पे जाएगा अवे फ्रॉम दैट नॉर्मल, कभी भी रिफ्रैक्टेड रे आपका बेंड होगा। तो उसके बाद एक फाइनल कंडीशन आएगा जिसमें जो आपका फाइनली रिफ्रैक्टेड रे जो था वो जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पे टच करेगा उसको, दैट इज़ इट विल ट्रैवल अलोंग द इंटरफेस बिटवीन द टू डिफरेंट मीडिया, जिसके ऊपर एक पहला मीडियम है और दूसरे नीचे दूसरा मीडियम रहेगा। तो इसके बाद जो इंसिडेंट रे हम जो हमारे अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे हमें वो अप्लाई करना है कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे, और जिसकी वजह से वो यहाँ पे एंगल बनाएगा एक विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री।
वो 98 डिग्री उसका एंगल बनाएगा। तो जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा रहेगा देन क्रिटिकल एंगल द रे इज़ रिफ्लेक्टेड इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ भी अभी रिफ्रैक्शन बचा नहीं है क्योंकि वो टोटली शिफ्ट हो चुका है 90 डिग्री से ये यहाँ पे। तो इस जो मिनिमम एंगल होता है जिसकी वजह से आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर। अगर किसी को डाउट होता है या चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो लोग हमें यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। तो वी आर एंडिंग आवर टुडेज सेशन विथ मोटिवेशनल कोट। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बढ़ाओ अच्छे से, जो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको बढ़ाओ, मोटिवेट रहो ज़िंदगी में और बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।